Good morning, children. So once again, we are meeting in our next lecture, that is called lecture number 2 of chapter number 5. What is the title of our chapter? Movement towards independence. Right? Movement towards independence. That is the name of our chapter. Now see, children, let us revise something about lecture number 1. Revision. Lecture 1. In that revision, we have studied about Simon Commission. Simon Commission. Right? What happened? Why Simon Commission was introduced? What happened to Simon Commission? In which way Simon Commission was opposed? In second topic, we have studied about Nehru Report. Nehru Report. So what is meant by Nehru Report? The report which was drafted, the rules, regulations of the society, one type of constitution which was drafted by Motilal Nehru and other prominent leaders of that time, and which was submitted in order of accepting the challenge of Hindi Wazir Buchanan, was called Nehru Report. But as you know, children, unfortunately, this report was not accepted. British government did not accept this beautiful report. It was fantastic, but still, due to some grudge, as we knew that it would never be accepted, though it was one of the best reports produced ever. Then we came to concept of complete independence. Complete independence. Right? The first, our independence was declared on 26 January 1930 on the banks of river Ravi in Lahore. And as I told you at the ending of the part, unfortunately on that day we could not gain independence. Hence, in order to make memorable 26 January 1930 as a memorable day, we have installed our constitution on that day after independence. Thus, today, that 26 January Independence Day is celebrated in independent India as a Republic Day, that you all know. So, this was the 3 topics which we have taken in lecture number 1. Right? Now, we will move forward. This incident happened in 1927. This was the same report of 1927. This was the incident of 1930. Now we are moving to next topic of 1931. Okay, children? So, now we start our lecture. Okay, children? Dandi Yatra. From March 12 to 6th April 1930. This is the date from which Dandi Yatra started in the country. Right? So, this is our new topic of today's title, Dandi Yatra. Okay, children. So, we will start with our topic. Dandi Yatra. Page number 32. Right? At present, I am on page number 32. Page 32. You come with me on this page.
पेज 32 पे आप आ जाओ। पेज नंबर 32 पे हम पढ़ाई करेंगे टेक्स्ट बुक में। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस स्टार्ट। Dandi Yatra. As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go back to Dandi village, go to the Dandi village by the sea coast to break the salt law. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई थी, बराबर है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? जो सरकारी कायदे कानून है, जो हमको पार्शल बनाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी जानबूझ के ऐसे कायदे कानून बनाए हैं, तो उसका हम कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन वायलेंटली उसका हम बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। और इसको, इस विरोध को बोला गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ऐसी ही सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के तहत ये दांडी यात्रा का आयोजन हुआ। उसके पहले हम बैकग्राउंड में देखते हैं। British was totally attracted in material wealth of India, as I told you. They wanted to exploit India at any cost. जो एक समय भारत सोने की चिड़िया था, वो आज 1930 में बिल्कुल कंगाल बना दिया था, भिखारी बना दिया था, भिखारी। इतनी लूटपाट मचाई रखी थी, फिर भी ये लोग को संतोष नहीं हुआ था। फिर भी उसको चाहिए था कुछ, कि अभी भी इंडिया में थोड़ी जान है, अभी भी लूटपाट की पॉसिबिलिटी है, तो अभी भी हम इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसके तहत एक कई सारे कायदे कानून बने टैक्स के रिलेटेड। एक वैसा ही कायदा बना जिसमें सॉल्ट पे टैक्स डाला गया। सॉल्ट पे टैक्स डाला गया। अरे भैया, दुनिया की कोई भी सरकार देख लो, सारी सरकार में, सारे देश में टैक्सेशन पॉलिसी होती है, बराबर है। जब मोनार्कियल सिस्टम थी उस वक्त भी टैक्सेशन पॉलिसी थी, कोई इतनी बड़ी राजा महाराजा अपने हुकूमत चला सकते थे। टैक्स होना चाहिए, टैक्स सिटीजन के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि उसमें गरीब वर्ग भी आ जाए। टैक्स ज्यादातर अमीर लोगों के लिए होता है। कोई भी देश की सरकार आप देख लो, तो टैक्स की जो इनकम होती है वो देश की भले के लिए खर्च होती है, हमारे आर्मी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और गरीबों के लिए वो यूज होते हैं। तो कोई भी सरकार, अभी हम डेमोक्रेसी में आप देख लो तो रॉबिन हुड का काम करते हैं। रॉबिन हुड की स्टोरी को आपको मालूम है, बराबर है। वो अमीर लोग को लूट के गरीबों को देता था, बांटता था। तो वैसे ही सरकार रॉबिन हुड का काम करती है। अमीर लोग के पास से अपनी आय में से टैक्स देती है और गरीबों में देना पड़ता है। तो सरकार को ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ तो हो कि हमारी वजह से कोई लोग को नुकसान हो। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया में अपनी इनकम ज्यादा बढ़ाने के लिए हर एक हिंदुस्तानी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स की नींव रखी उसने सॉल्ट पे, नमक पे टैक्स डाल के। भैया आपको मालूम है, नमक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सब खाते हैं। आप भी रोज खाना खाते हो तो नमक का इस्तेमाल होता है। मैं भी खाना खाता हूँ, अपने हिसाब से नमक हम यूज करते हैं। अगर एक भिखारी परिवार है जो रास्ते पे अपना खाना खा रहे हैं, मांग के खाना खा रहे हैं, उसके खाने में भी नमक तो होगा। तो नमक ऐसी चीज है जो हर एक आदमी को
उसकी जरूरियात होती है। अगर ये नमक आपको चाहिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। ऐसे कोई कायदे में नहीं क्या? टैक्स अमीर लोगों के पास से लिया जाता है, कंफर्टेबल लोगों के पास से लिया जाता है, केपेबल लोगों के पास से लिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। इधर तो गरीबों को लूटने की बात है। गरीब नहीं, जो रास्ते पे रहता है, जो हार्ड वर्क करके अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। हिंदुस्तान में आज भी ऐसा पॉपुलेशन है कि जिसको सुबह खाना मिला होता है वो शाम के बारे में सोचते हैं कि चलो आज का तो सुबह का तो खाना हो गया, दोपहर का, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। वो भी सोचते हैं। ऐसी कंगालियत में, ऐसी गरीबी में उन लोग के पास से आप नमक पे टैक्स ना देगा। सो इट वॉज अ रैंक इनजस्टिस डन। ये तो हमारी गरीब क्लास की मजाक जैसा साधन बना दिया। राइट? अगर आपको नमक खाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने प्लान किया कि नहीं, ऐसा कोई सरासर नाइंसाफी नहीं चलेगा। उस वक्त महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में थे। और भैया मैं आपको बताता हूं, आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लेना, सर्च कर लेना नेट पे। जब उसके दिमाग में बात सूझी कि ये बात बिल्कुल नाइंसाफी है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, तब दांडी यात्रा का जन्म हुआ। क्यों दांडी यात्रा? क्योंकि उस वक्त गुजरात में संजान, नवसारी, दांडी जो दरियाई पट्टा है, उधर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता था। Salt pans were located in this area. Maximum salt was produced in this area. So Gandhiji made up his mind, I will reach over there by foot and I will make this salt. जो हो सके वो करो। नहीं है कायदा मानने का, ओपन चैलेंज था। उस वक्त जब गांधी जी ने अपने आश्रम में बात रखी, तब उसके साथ 4 लोग शामिल थे। है समझ में? सिर्फ 4 लोग। गांधी जी ने 4 लोगों को भी ऐसे नहीं बोलते आप मेरे साथ चलो, मेरे को इधर से इधर जाना है। गांधी जी ने अपनी बात रखी थी। और एट दैट टाइम गांधी जी वाज इन लेट 70s, तकरीबन 17 साल की उसकी उम्र हो गई थी। तो इसीलिए आश्रमवासियों ने उसको बोला कि बाबू हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, जैसे आपकी इच्छा। साबरमती आश्रम जहां से उन लोगों ने ये यात्रा शुरू की, तब 4 लोग थे। साबरमती आश्रम से पहला उसका जो पड़ाव था, वो आज उसको बोलते हैं, अहमदाबाद का ये एरिया है चंडोला तालाब, चंडोला लेक, ऐसा चंडोला लेक नामक जो विस्तार था, चंडोला तालाब आज भी है अहमदाबाद में। अभी आप अहमदाबाद बड़ौदा में एक्सप्रेस हाईवे पे आप कभी गए हो तो उधर से शुरू होता है। तो उधर उसने जो सभा की, उसमें 78 लोग गांधी जी के साथ जाने के लिए तैयार हुए। 78 लोग की यात्रा बनी। ये तकरीबन अहमदाबाद से दांडी का डिस्टेंस 380 किलोमीटर का था। जब यात्रा शुरू हुई तब गांधी जी के साथ तकरीबन 78 लोग थे। जब यात्रा खत्म हुई तब there was more than 4 lakh people, 4 लाख से ज्यादा लोग थे। और किसी को न्योता नहीं दिया था, आमंत्रण नहीं दिया था। जितने लोग यात्रा में थे उससे तो 10 गुना ज्यादा लोगों को रिफ्यूज किया था कि भैया आप किधर हो। एक हाइप हुआ था, एक इंपैक्ट हुआ था, बराबर है। गांधी जी की यात्रा को लेके उस वक्त मीडिया कवरेज उसको मिला था। कई देश विदेश के मीडिया लोग इधर आए थे इसको कवर करने के लिए।
कि what a terrible incident has taken place in India. A person who is called Mahatma by the people of India, barefooted, covered a distance of 380 kilometers from Ahmedabad to Dandi. जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ था, हिला डाली थी सरकार को। तो उधर उसने ये प्रण लिया था कि आप अभी देखो, तो ये बात है आजादी की जंग लड़े, अब ये मैं यात्रा निकालता हूं, मैं स्वर्ण का नियम तोड़ने जा रहा हूं, कायदा तोड़ने जा रहा हूं, और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मेरी भारत माता, जब तक मेरा हिंदुस्तान, मेरा देश आजाद नहीं होता, तब तक मैं अपने आश्रम में वापस नहीं जाऊंगा। This was the विश्व प्रतिज्ञा made by महात्मा गांधी, स्टार्टिंग ऑफ दांडी यात्रा। और उसके बाद तो आपको मालूम है वो प्रतिज्ञा के हिसाब से दांडी में उसने सॉल्व का कायदा तोड़ा, गांधी जी अरेस्ट हुए, जेल हुई, और उसके बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में चले गए, दिल्ली में चले गए, 17 साल तक आजादी की जंग लड़ते रहे। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, और थोड़े समय बाद उसकी हत्या हो गई। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जब दांडी यात्रा पे चले 1930 में, इट वॉज हिज लास्ट प्रेजेंस इन साबरमती आश्रम। उसके बाद उसको अपने घर जाने का कभी मौका नहीं मिला। उसके डेथ तक वो कभी अपने आश्रम, अपने घर वापस नहीं आए। है समझ में? ये घटना हुई थी 1930 में, 48 के करीब बापू की हत्या हो गई, उसकी डेथ हो गई शराब। तो ये जो यात्रा है वो हम पढ़ने वाले आज। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड हिंदी में बताया, आप पढ़े भी हो 8th में, 7th में, लेकिन हमने एक बार रिफ्रेश कर दिया ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। क्यों दांडी यात्रा हुई थी, क्यों गांधी जी शॉर्ट लॉ तोड़ना चाहते थे, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अभी हम अपना टॉपिक करेंगे, इसमें से आपको 2 चीजें आएंगी, एक शॉर्ट नोट और दांडी यात्रा, बराबर? शॉर्ट नोट और दांडी यात्रा। सेकेंड, गांधी जी स्टार्टेड दांडी यात्रा। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ दांडी यात्रा, जहां से यात्रा गुजरी, स्वागत होता था, राइट, बहुत जश्न होता था, सुबह से सत्याग्रही चलते थे, शाम तक रुकते थे, कहीं भी पड़ाव होता था, कोई भी गांव में से जहाँ से यात्रा प्रसार होती थी उसका स्वागत होता था, खाने पीने की व्यवस्था होती थी। फिर शाम को भजन, सत्संग, कीर्तन, गांधी जी अपने प्रवचन देते, और इतना समुदाय घूम गया उसमें। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता गया, यात्रा का कद विशाल जैसे विशाल होने लगा। ऐसे सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेट अस सी, राइट, पेज नंबर 32 पे आप आ जाओगे। As a part of civil disobedience movement, Gandhi decided to go to Dandi village on the sea coast to break the salt law. काय को salt law break करना था, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया अभी, right? On 11th March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. उसने बोला साबरमती आश्रम कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो अनजस्ट कायदा ब्रिटिश सरकार ने लगाया है, नमक पे टैक्स लगाया है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो ये कायदे का
मैं सविनय विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसको तोड़ना चाहता हूं. ऐसा कुछ. Even if the people got arrested, with firm determination of non-violence, struggle against government continued. कोई खौफ ही नहीं था, अरेस्ट का, मार का, कोई डर नहीं था. महात्मा गांधी का इतना जादू चला था उस वक्त, मौत नामक चीज चली गई थी. कोई भी जात का डर नहीं था, क्योंकि वो सच्चाई के साथ थे. इसीलिए तो हमने अपना नेशनल स्लोगन रखा है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ विन्स. कभी आप सच्चाई को कुचल नहीं सकते, दबा नहीं सकते. ऐसा. On 12th March 1930, under his leadership, Gandhiji commenced Dandi Yatra with his supporters from Harijat Ashram. इसको आज साबरमती आश्रम बोलते हैं. इसको आज साबरमती आश्रम बोलते हैं. Singing the hymns, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाए. पीड़ मतलब पीड़ा, pain. Right? Gandhiji said in Dandi Yatra, brave never runs from the struggle. जो बहादुर होते हैं वो कभी तकलीफ से भागते नहीं हैं, स्ट्रगल से भागते नहीं हैं. जो भागते हैं वो कायर होते हैं. We are the brave people. Why should we run from struggle? Because it's a cause of freedom, matter of freedom. We have to sacrifice. दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो मांगने से आजादी मिली है. आजादी के लिए तो कई सारी जंग होती थी, कई सारे बलिदान होते थे, तब जाके आजादी मिलती थी. Gandhiji, along with his supporters, started Dandi March. This march was 370 kilometers, which included Aslani. ये सब देखो मैप में दिए गए हैं, वो सारे नाम हैं, राइट? असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी, as well as small and big regions connected to that area. जहाँ से यात्रा प्रसार होती थी, वहाँ एक जश्न का माहौल बन जाता था, एक सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता था. समझो, अगर आप इमेजिन करो तो भी आपको लगेगा क्या क्या होता होगा. और वास्तव में ये सारी चीजें जब हुई थी तब उसका मोमेंटम कितना होगा, तब उसका एंथुसियाज्म कितना होगा, आप सोच सकते. ऐसा कुछ. During Dandi March in this region, people were explained the reasons of civil disobedience. लोगों को सही रास्ता बताने का था. आज की जैसे वो सड़क छाप नेता कोई नहीं थे. अब देखते हैं 2-5 नेता बहुत सारे देखो. अभी बोलते कि हमारे प्रधानमंत्री है, तो I personally believe I am a strict follower. I accept I am a strict follower, supporter of Narendra Modi. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जब वो गुजरात के सीएम थे, ये बात निकली है तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे. गुजरात के सीएम जब थे ना, उससे पहले से उस वक्त के प्रधानमंत्री नहीं थे. ऐसा समझ में, प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे. और उस वक्त मैं उसको पहचानता था. आपको शायद ऐसा लगेगा कि सर सुबह सुबह पी के आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. You will not believe, children. I have met that person in 1999. उस वक्त वो सिर्फ नरेंद्र भाई
मोदी थे। जब मैं मतलब यंग एज में था तब आरएसएस के लिए काम किया है, ये भाजपा के लिए भी काम है। So I'm not having any political affairs or I'm not connected to all this, but अभी तो सिर्फ एक टीचर हूँ। लेकिन उस वक्त की बात है, मेरे को मालूम है ऐसे कि उस वक्त 1999 में वो भावनगर आए थे और मेरे कई सारे दोस्त अभी भी आज पॉलिटिकली एक्टिव है और कई तो बड़ी बड़ी जगह पर पहुंचे हैं। तो उस वक्त मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, उस वक्त हमारी भावनगर कॉरपोरेशन का इलेक्शन था और इसके प्रचार के तहत वो भावनगर आए थे। तकरीबन 3-4 घंटे छोटी मोटी सभाएं की थी। फिर रात को 11 बजे, जब ये 10-10:30 बजे से खत्म हुआ, तो मेरे एक दोस्त है, उसकी वाइफ आज हमारी भावनगर पॉलिटिक्स में खूब आगे है। I should not disclose the name, लेकिन वो क्या बोलते हैं, भजिया बहुत अच्छा बनाती है। तो उसको पहले उसको मालूम था कि भाई ये है, तो आई थिंक इट वॉज राउंड अबाउट 10:30 और 11 o'clock। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने ये डिमांड रखी थी कि पिंटू भाई, मेरा दोस्त का नाम पिंटू भाई, अभी भजिया खाना है। तो मेरे को मालूम है, सब उसके घर गए थे और 11-11:30 बजे, 1999, उस वक्त भजिया का प्रोग्राम बना था। और फिर ऐसे समय चलता गया, बराबर है, समय चलता गया। क्या मालूम था कि ये इंसान जो हमारे सामने बैठे, जो हमारे साथ अभी ये चाय और भजिया खा रहे हैं, वो आगे जाके देश का नहीं लेकिन वर्ल्ड का लीडर बनेगा। राइट? I know all these things because I mean huge background connected to all these things. I am connected to teaching field, but still we are in communication. And today the person we are talking about is very much ahead. All these things. Let us not talk about politics. लेकिन ऐसे भी नेता होते हैं। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों में आपको देना चाहता हूँ कि मान लो छोटे बच्चों लोग का ये फैंसी डे कंपटीशन होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड में, बाद केजी नर्सरी में, आया समझ में? आपने भी किया होगा, है? आपने भी किया होगा। तो उस वक्त जो वो बच्चे लोग की जो टीचर होती है वो बताती है कि भाई हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है। बच्चा जाके घर पे बोलते हैं, मम्मी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, पापा ऐसा है, हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन ऐसा है। तो कोई भी बच्चा उस वक्त जो कम्पीट करता है, पार्ट लेता है, वो कोई बात महात्मा गांधी बनता है? कोई सुभाष चंद्र बोस बनता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल बनता है, कोई बाबा साहेब अम्बेडकर बनता है। आया समझ में? तो ऐसे नेता लोग थे जो सही बताते थे, जिसको अपनी कुछ परवाह नहीं थी, देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे। कभी आपने स्कूल में ऐसा देखा है कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आई और कोई बच्चा लालू प्रसाद यादव बना, कोई मायावती बना, कोई केजरीवाल बना, कोई वो जिसका तीजा माल खाली बोलते हैं दिग्विजय सिंह बना? मैं नाम से बोलता हूँ, कभी देखा है? These are rotten corrupt politicians, rotten, सड़े हुए। उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त लोगों का भरोसा था
उस वक्त ये सब की एक ही आवाज पे कई लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसी गुंडागर्दी नहीं थी, ऐसे लूटपाट नहीं थी, अपने देश को लूट लूट के अपनी तिजोरी भरने वाली बात नहीं थी। इसीलिए उसका इम्पैक्ट था। कमिंग बैक टू टॉपिक, राइट? गांधी जी टू भाट मीन्स चंदोला तलाव, उनको एरिया को भाट एरिया बोलते हैं अहमदाबाद का। ऑन 29 मार्च 1930, I shall die the death of cowing dog, but I will not return to the ashram without attaining पूर्ण स्वराज। कुत्ते की मौत मरना मंजूर है, लेकिन जब तक मेरी माँ, मेरी भारत माता, जब तक मेरा देश, जब तक आजाद नहीं होता, तब तक मैं अपने घर में पाँव नहीं रखूंगा, अपने घर नहीं जाऊंगा। तो ये उसका जुनून था, ये पैशन था। As Dandi March passed through this small and large towns, people used to clean the roads. गांधी जी, आपको मालूम है, स्वच्छता के आग्रही तो थे। उसको चौखाई को बहुत पसंद थी, right? Small and large towns, people used to clean the village, decorate their houses with torans and shower conscious यहाँ सत्याग्रह। ठेर से बहुत भव्य स्वागत होता था सत्याग्रह का, बहुत बड़ा जश्न का माहौल था, जहां जहां से यात्रा निकलती थी। Dandi Yatra had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consciousness among people. दांडी यात्रा एक सद्भावना यात्रा हो गई थी, इसमें हिंदू मुसलमान सब थे। मुस्लिम लीग कहाँ खो गई थी मालूम नहीं है। देखो ये इतना बड़ा टॉपिक मैंने बुक में लिखा है, उससे ज्यादा आपको पढ़ाया है, समझाया है, लेकिन कभी भी मैं मुस्लिम लीग का नाम बोला, अचानक मेरे को याद आ गया। Suddenly I woke up from my sleep and remember कि भैया एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जो आजादी के लिए लड़ती है, उसका तो पता ही नहीं है कहाँ घूमती है, रखड़ती है। घूमने का नहीं, गुजराती में बोलते रखड़ना, कि भैया ये सब लोग कहाँ रखड़ते हैं, समझ में? तो वो उसका कुछ अता पता नहीं था कहाँ थे। I told you when I started the topic कि एक लाइन याद रखना, जब से लीग बनी तब से 1946 तक कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई भी एक्टिविटी में सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि वो ब्रिटिश की पैदाइश थी। ग्रेट चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश, आई गेस। Gandhi ji, the whole nation was enveloped in the wave of satyagraha. Gandhi ji, along with colleagues and supporters, reached Dandi after 24 days, that is 5th April 1930. और 6th April सुबह स्नान करके गांधी जी ने हैंडफुल सॉल्ट उठाया और वो कायदे का भंग किया। Early morning on 6th April, Gandhi ji broke the salt law by picking the handful of salt from the sea coast of Dandi in a loud voice saying, I have broken the salt law. And by addressing the people gathered there, he said, by this event, and applied the salt to the foundation of the British Empire. जो असत्य के बुनियाद पे इतनी बड़ी जो इमारत खड़ी है ब्रिटिश की, उसकी नींव में मैं नमक डालता हूँ। आपको मालूम है किसी की नींव में फाउंडेशन में नमक डालो तो थोड़े समय में सड़ जाता है और ये इमारत नीचे आएगी, क्योंकि उसकी बुनियाद असत्य पे है। सत्य पे बुनियाद नहीं हो सकती। By applying British Empire, Sri Mahadeva Desai has compared this event of Mahabhishkaram, a great reunification. भीष्म प्रतिज्ञा की तहत ये इवेंट
बनी थी, राइट? जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया and across the world visited and published report about what they have witnessed. जो देखा था वो ही छपा था, और उस वक्त तो इतना मीडिया कॉन्शियस नहीं था। उस वक्त वर्ल्ड मीडिया ने इसकी नोंद ली थी, वर्ल्ड मीडिया ने उसको पब्लिश किया था, राइट? In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th of March, was nationally acclaimed, achieved its physical competition by starting applying salt to the foundation of British Empire. और अभी मैंने जैसे बोला, किसी भी नींव में फाउंडेशन में आप सॉल्ट डालो तो थोड़े समय बाद उसका फाउंडेशन वीक हो जाता है, मतलब वो स्ट्रक्चर गिर जाता है, राइट? तो ब्रिटिश एम्पायर का जो स्ट्रक्चर था वो आज गिराना था, आज या कल, मतलब कमिंग डेज में, राइट? Civil disobedience movement generated a new awakening conscience among the people of India. The British police beat the satyagrahis mercilessly. लाठी चार्जेस were made throughout the nation. ये यात्रा तो दांडी में हुई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे भारत में देखा गया था। ठहर थे जुलूस, सभाएं ऐसे होते थे, and people were ruthlessly beaten, right? But still, they were not there to surrender. They were not there to stop any movement, right? The police beat them mercilessly. Lathi charges became frequent. Arrests, shooting, and operation on women and children continued. But the agitation did not stop. Understood? तो ये आप मोमेंटम देख सकते हो कि कितना उस वक्त दांडी यात्रा का इम्पैक्ट होगा, कितना असर होगा पूरे भारत। Understood? Now, constructive activities, right? During Dandi March, numerous constructive programs like boycotting of foreign goods, क्योंकि मैंने आपको बताया था, 4 ऐसे यात्रा गुजरती थी, मान लो शाम के वक्त कहीं पे पड़ा होता है, उधर सब खाना बना जब खत्म हो जाता है, मतलब डेली एक्टिविटी जब खत्म हो जाती है, तब जाके उसे भजन, सत्संग, प्रवचन ऐसे होते थे। उधर जहाँ से यात्रा निकली थी, वहाँ सब लोग को इसके बारे में आगाह किया था, मतलब समझाया था, राइट? Which things are included? Number 1, boycotting of foreign goods, right? स्वदेशी क्यों नहीं? क्या को विदेशी माल एक्सेप्ट करें? Prohibition of liquor, दारू छोड़ो, कई फैमिली बर्बाद हो जाते हैं, आपको मालूम है। Removing of untouchability, Hindu-Muslim unity, and oath of social service. मैंने आपको बोला था, मुस्लिम लीग एक कोने में पड़ी थी, उसका कोई नोंद भी नहीं था, राइट? आओ तो मोस्ट वेलकम, नहीं आओ तो कोई बात नहीं, आपके बिना भी चलता है, राइट? क्योंकि मैंने आपको बोला मुट्ठी भर लोग लीग को सपोर्ट कर रहे थे, 99% लोग समझते थे कि लीग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक ब्रिटिश का ब्रेन चाइल्ड है, सब समझ गए, राइट? सो दिस वाज द थिंग्स। दांडी यात्रा and breaking of salt law brought not only nationwide consciousness but also brought faith and aspects of non-violent struggle and the movement worldwide. इतनी तेज मूवमेंट हुई, उसके पूरे दुनिया ने उसकी नोट ली, right? Satyagraha was accepted as a worldwide movement after the incident of Dandi Yatra, right? Processions, programs, and assemblies were conducted by boycotting of foreign goods, prohibition of foreign liquors, picketing of foreign liquors, right? जो देशी दारू सब गाँव विस्तार में बनाते, उसकी भटिया लूटते थे, उसको जला करते थे, ऐसा कुछ, राइट? उसको बोलते हैं
regulating of liquor manufacturing, not giving revenue tax, satyagraha, and removal of untouchabilities. This was the main ideas which generated during Gandhi Yatra, right? And after that, number of small satyagrahas took place. You underline it will be a part of your SQL blanks, right? Incidents like agitation were held under the leadership of Khan Abdul Ghaffar Khan, who was also called Frontier Gandhi at Wadala, जिसको बोलते हैं वडाला सत्याग्रह. Struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Mumbai. The Rasta Satyagraha in Surat and Viramgam salt agitation were the major incidents which took place after completion of Gandhi Yatra. So this was the major topic of Gandhi Yatra. Now, one more topic will continue, that is called Quit India Movement. Sorry, Gandhi Movement. Round Table Conference, right? Gandhi Irving मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, सिर्फ महात्मा गांधी को ही आमंत्रित किया गया था आज़ादी की बात करने के लिए. हमारे लोग समझ गए थे ये जालसाजी है, इसमें कुछ होने वाला नहीं, इसलिए ये बात नहीं बढ़ी थी. गांधी जी was called upon the British for the round table conference related to constitutional structures and reforms. First round table conference was held, but the absence of Congress leaders, it was futile. Futile means fruitless. To reconcile with Congress, the pact between Gandhiji and Irwin was made, which was called Gandhi-Irwin Pact. गांधी जी को मना के बुलाए थे, right? In 1931 March, in which permission of free collection or manufacturing of salt by person near seashore was permitted and peaceful picketing was the main points. ब्रिटिश सरकार के पास से हमने मंजूरी ली थी सॉल्ट मैन्युफैक्चर की, उसमें टैक्स भी नहीं देने का था, वो ब्रिटिश शासन ब्रिटिश सरकार मान गई थी और उसके तहत ये काम हुआ था. The second round table conference, Gandhiji was only the representative from Congress. The British had discriminating points of various religious committees in which Gandhiji was deeply disappointed and the conference was dissolved. That means गांधीजी खूब दुखी हुए थे. दूसरी बार जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें थोड़ी कम्युनल बातें आई और वो कम्युनल बातें करने के हिसाब से गांधीजी थोड़े दुखी हुए और ये दुख की वजह से उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से अटेंड करने से मना किया. लेकिन अंग्रेजों का मान रखने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, हमारी कम्युनिटी को उधर उसने संबोधित किया था, काम किए थे, आज़ादी की बात की थी, लेकिन प्रोफेशनली ही बॉयकॉटेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो ये बात सामने आती है, राइट? सो नाउ चिल्ड्रन, वी आर एंडिंग ऑन 2 टॉपिक्स. नाउ इट इज टाइम टू टेक योर होमवर्क. आई होप आपको ये बिल्कुल टॉपिक परफेक्टली समझ में आ गया होगा. इसके साथ जुड़ी हुई कई बातें हैं, आप नेट पे सर्च करो, घर बैठे हो, बराबर है. जब आप स्कूल आओगे तब उसको डिटेल में बात करेंगे, राइट? बताऊंगा मैं आपको जो मेरे पास जानकारी है, राइट? नाउ इट इज टाइम टू टेक योर होमवर्क. Only one question, right? Or detailed note on Gandhi Yatra. राइट? एक ही क्वेश्चन हमारे आज होमवर्क का टॉपिक है. राइट अ डिटेल नोट ऑन गांधी यात्रा. सो विद दिस आई एम एंडिंग माय टॉपिक. विल मीट इन नेक्स्ट lecture to your new topic. Okay children? Then goodbye. See you.